I'm your host, Salim bin Muhammad Rafi, and here is your YouTube channel, Zamir Universal. The fall of Syria may look as a small incident, but unfortunately, such a thing occurs in thousands and thousands of years. And it is going to have a great impact on the whole world. The peace of the world is going to be shattered, and that's one central place in the whole world where the end of times has been prophesied by both, the Jewish and Christian as well as the Muslim religions. Now, those who did it, they are going to regret and repent that they have expedited that time. And all those jubilations at the moment you see in Syria, and they are living in a fool's paradise. And especially I want to direct and address this Mr. Jolani, who is actually the deputy of Baghdadi, the ISS who was, and everybody knows, created by the Zionists as well as with the help of the CIA, United States of America, to put the whole Middle East on fire. Now I put some speakers for you to prove my point that this is not a very recent incident which looks that all. My name is Richard Medhurst. I'm a British journalist. I was born and baptized in Syria. So let me give you my perspective on what's happening in Syria, both as a Christian and a journalist who cares deeply about the future of the country. For the last days, the media have been showing images of people celebrating and jubilating and saying the country is finally free and everything is fine and dandy. But this couldn't be further from the truth. The media have been lying about Syria for 13 years, and many Syrians will come to find that they have been duped. This was not a revolution, but a regime change operation. Syria was the last anti-Zionist Arab state in the region. It was the last one that supported the Palestinian cause. And they've been trying to destroy it for decades. In 2011, dozens of foreign countries and groups conspired to overthrow the government. Turkey, Qatar, Saudi Arabia, the UK, France, Germany, the US, the EU. Many jihadists came in from Chechnya, Uzbekistan, Tajikistan. You've got fighters now in from Ukraine, Turkey, Libya, Uyghurs from China. Many of them are not Syrian. The CIA spent over $1 billion trying to overthrow the president. So that's their most expensive operation in history, right? They brought all those weapons in from Libya after they did another regime change operation there. This was the largest propaganda campaign in modern history. MI6 were funding the white helmets and other cutouts. They lied about chemical weapons just like they lied about them in Iraq to justify bombing and sanctioning Syria and crippling its economy. Syria is not only occupied by Israel, but by two NATO armies, by Turkey, by the United States. And all these rebels got their training and their gear from those actors. You've got a photo of Jolani who's just casually standing there watching Damascus as it's being bombed by Israel, doing nothing. And what is he wearing? He's wearing a t-shirt, a shirt from Emerson Gear. So that's either Israel or Turkey that gave it to him. And Turkey was giving these terrorists safe haven in Idlib for years. Syria cannot be removed from the geopolitical context of the Levant. You can't talk about Syria like it's some remote island where things happen in a vacuum. Syria was the piece that connected Iran and Iraq to Lebanon and Palestine. The timing of this offensive in the last few days wasn't a coincidence. It happened right after there was a ceasefire in Lebanon. So as they destroyed Gaza, as they destroyed Lebanon, the Israelis then moved on to destroy Syria. And Turkey, which again is a co-conspirator in all this, Erdogan is admitting that he is behind the offensive. He said it on camera. Tabii İdlib, Hama ve Humus hedef tabii Şam. Erdogan is supporting Israel. He is NATO. He's Muslim Brotherhood. So when you have Erdogan admitting this and then Netanyahu doing a victory lap on Syrian soil on the occupied Golan Heights, I mean, what am I supposed to say? המשטר הזה נפל, זוהי תוצאה ישירה של המכות שהנחתנו על איראן ועל חיזבאללה. The day that Syria fell, Palestine also fell. These jihadists are an extension of NATO, okay? They've got NATO training, NATO weapons. And have you noticed that they never attack Israel? Ever.
Erdogan and Al-Qaeda, all they do is talk about the Ummah, and yet they won't lift a finger for Palestine. These jihadists are in Damascus under the Israeli bombs, and they still won't fire a shot at Israel. They won't even talk about the bombings. These rebels have conspired to leave Syria defenseless. Instead of fighting Israel, they're busy changing flags and eating ice cream and giving speeches. That's how much they care about Syria. And make no mistake, because these are extremists, Hayat Tahrir al-Sham is a rebrand of Jabhat al-Nusra, which is a rebrand of Al-Qaeda. Jolani, who now they're trying to portray as some kind of statesman and a moderate, was the head of Al-Qaeda's branch in Syria. He was a deputy of al-Baghdadi in ISIS. The US even put a $10 million bounty on this guy's head. He is a head chopper. He is a terrorist. You think Al-Qaeda is going to give Syrians freedom of speech and protect minorities and make people equal? They're already carrying out public executions, beatings. This is vigilantism. And they said they'd give Syrian soldiers amnesty and then lied about it, and they filmed their own executions. How is Al-Qaeda being in charge of Syria better than the previous regime? The people cheering this on are mental. You've taken away a bad car and then given people a bicycle instead and called it a set of wheels. I mean, this is a downgrade, to put it mildly, in every way. Syria was secular. Syria was safe for all religions and ethnic groups. Syria, remember, is a Christian country first. Christianity was born in Syria. Syria is just as much Christian as it is Muslim. But now Christians and other minorities are under threat. The first photo that they post of this new cabinet and this new prime minister, this is a state institution, right? They've got an Islamic extremist flag right next to the Syrian flag, the new Syrian flag. What kind of message is that supposed to send to Syrian Christians who make up 10% of the population and other minorities? It tells them, basically, screw you. You're excluded. That's what it means. And we see the extremism on the streets. We see the ISIS trucks driving through Christian neighborhoods in downtown Damascus, firing Kalashnikovs into the air and terrorizing people. A Christian journalist who was stopped in a Christian neighborhood and questioned about her religion. أجبرني أن أقول هذا الشيء. قال طلع فيه إنه أنت مسيحية علوية سنية مو سنية لا إنه شيعية درزية. I mean, this is unheard of in Syria. You've got priests that are hiding their crosses when they take photos with these new leaders, and then we're supposed to look at that and believe that this is inclusive. This climate of fear did not exist a week ago, all right? Syria is going backwards. Syria was self-sufficient in oil, gas, wheat, cotton, grain. Syria had no foreign debt. Its central bank, its monetary policy were independent. They were not controlled by the West. Syria had free healthcare, free education, social welfare programs, social safety nets, improved literacy rate, improved infrastructure. I saw all of that with my own eyes. And now what is happening? It has regressed. But as soon as this new regime in Damascus announced that Syria will be a free market economy, meaning come in, bring your foreign direct investment so you can control our monetary policy and our politics, what happens? The United States removes Hayat Tahrir al-Sham, meaning Al-Qaeda, from the terrorist list. Isn't that amazing? The West and Israel have been dying to move on Syria's gas, and that's exactly what they're going to do, just like they're going to steal Gaza's and Lebanon's gas, so they can replace the Iranian and Russian gas, which they sanctioned. In 1 or 2 years, Syrians will be begging for the old days, just like Iraqis and Libyans do right now, when they remember what their countries were turned into by NATO. And look at the level of whitewashing, right? Do you hear any of the Western media talking about persecution of minorities and how Christians are being treated? Instead, they're rehabilitating this disgusting head chopper, Jolani. They're glorifying Al-Qaeda in the media, but I'm the one who gets arrested for terrorism, right? I'm the one who's under investigation, even though they're breaking the law. But I think Abu Muhammad al-Jawlani, the leader, has made great efforts over the last 10 years to distance himself from those terrorist groups. And certainly the actions we've seen of Tahrir al-Sham over the last 2 weeks has been those of a liberation movement, not of a terrorist organization. And then they have the nerve to complain about Russia invading Ukraine, but they call Israel's invasion a buffer zone. I mean, the nerve.
Don't forget that Israel has a Greater Israel project. You've got IDF troops who openly carry patches of Greater Israel on their uniforms. Smotrich, the finance minister, said on video just a few weeks ago that he wants Greater Israel to extend to Damascus, to swallow up the Syrian capital. כתוב בחז"ל שעתידה ישראל, עתידה ירושלים להתרחב עד דמשק. רק ירושלים, עד דמשק. Bezalel Smotrich a une vision maximaliste de la terre promise. Elle inclut les territoires palestiniens, mais aussi des territoires en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Irak, en Égypte ou encore en Arabie. And many who are pro-Palestine are still too dumb to understand that there is an Israeli agenda in Syria. And don't forget, Erdogan had control of Idlib and was harboring all these terrorist groups that he sent on the offensive. Turkey attacked Syria from the north. Turkey's now moving its own troops into Aleppo. And Israel attacked Syria from the south, while the Americans are in the east occupying the oil. And what did Israel do? Israel took control of Mount Hermon, of Jabal al-Sheikh. This is the most strategic place inside of Syria. It's the highest peak. It overlooks Israeli troop positions. And they took it without a fight. They've taken an area of land now in the last 48 hours that's several times the size of Gaza. They have destroyed Syria's military infrastructure, missiles, tanks, planes, ships, you name it, research laboratories. This is Israel's largest air offensive in history. Over 400 airstrikes. Not a word from these so-called rebels who claim to be representing the interests of Syrians. Israeli troops are 19 kilometers from Damascus. And the irony is the Israelis pretend that, oh, they don't want the weapons to fall into the hands of jihadists. You're the ones who gave the jihadists weapons in the first place. Netanyahu was in hospital, in an IDF hospital, shaking the hands of these so-called moderate rebels who are Al-Qaeda and doing photo ops with them. They were giving them medical assistance. They were giving them weapons. They were doing everything in their power, acting as an air force for them in order to help them overthrow and topple the government in Syria. And now we've got reports of scientists also being killed and hunted down in Syria, which is exactly what Israel did in Iran. They are crippling Syria's defenses for generations. And any government that is formed now is already going to be neutered, impotent, and illegitimate, and will have no sovereignty. How can you form a government? How can you defend the country when you allowed the enemy to destroy all of the military assets? This is treason. It's frankly treason. And the United States said they'll call the Golan Heights, the occupied Golan Heights, Israeli, as long as Assad is in power. As long as Assad is in power in Syria, as long as Iran is present in Syria, militia groups backed by Iran, the Assad regime itself, all of these pose a significant security threat to Israel, and as a practical matter, the control of the Golan in that situation, I think, remains of real importance to Israel's security. Well, guess what? Bashar al-Assad is gone, and yet they haven't changed their position. Joe Biden has kept Donald Trump's position of stealing land from Syria. The United States put Caesar Act sanctions on Syria. Bashar al-Assad is gone. Have they lifted the sanctions? No, the sanctions are still there. Is the U.S. Still controlling the wheat? Is it still controlling Syria's oil fields? Yes, it is. Donald Trump admitted it. Joe Biden kept them there, and now Bashar al-Assad is gone, and they still won't move their troops. They're still right there stealing our resources. Isn't it amazing? So in conclusion, Turkey's stealing more land. Turkey is going to attack the Kurds and persecute them, and now has them surrounded. Israel is stealing more land. Israel's destroyed Syria's military and Syria's central role in the Palestinian cause. Al-Jolani and his Al-Qaeda scum are going to sit on the throne. And U.S. corporations and banks will take over Syria's economy, hollow it out, steal its resources, and block the new Silk Road's access to the Mediterranean Sea so they can cripple China and the global south. This has been their plan all along. The same people that are committing a genocide in Gaza have taken over Syria under the banner of a fake revolution. And those who call themselves pro-Palestinian, many of them are too blind to see that by celebrating what is happening in Syria, they're siding with Netanyahu.
कहानी समझने से पहले आपको सीरिया की थोड़ी जियोग्राफी समझनी होगी। सीरिया एशिया के लिवेंट रीजन का एक हिस्सा है। मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट कोस्ट पर फैले इस लिवेंट रीजन में सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, पैलेस्टाइन सब शामिल है। यह एरिया हिस्टोरिकली कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी से भरा होता था। एंशिएंट टाइम्स में यह ट्रेड रूट्स और एम्पायर्स का क्रॉस रोड माना जाता था। 16वीं शताब्दी में ऑटोमन एम्पायर ने इस रीजन को अपने कंट्रोल में लिया। सीरिया उस वक्त एक लूजली गवर्नड एरिया था। उस दौर में सीरिया के लोकल पॉलिटिक्स काफी डिसेंट्रलाइज थी, लेकिन ओवरऑल सेंट्रल ऑटोमन रूल के चलते हुए वहां स्टेबिलिटी भी थी और इंटरनल प्रॉस्पेरिटी और ऑटोनॉमी भी थी। सीरिया की कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है 1918 में। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर का कोलैप्स हो जाता है। इसके बाद लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट के अंडर सीरिया को फ्रांस के कंट्रोल में डाल दिया जाता है और यहीं से शुरू होती है पूरी भसूड़ी। 1920s और 1930s में सीरिया में एंटी कलोनियल मूवमेंट्स चलने लगते हैं और 1941 में फ्रांस की कलोनियल रूल के खिलाफ मेजर रिवोल्ट्स होते हैं। फ्रांस ने फिर ऑफिशियली 1946 में सीरिया को इंडिपेंडेंस दे दी, लेकिन सीरिया की पॉलिटिकल लैंडस्केप तब भी अनस्टेबल थी। इंडिपेंडेंट सीरिया के पहले कुछ दशक अगर हम देखें तो यह देश इंटरनल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री कू से जूझ रही थी। 1940 से लेकर 1960s तक सीरिया में कम से कम 7 कू हो चुके और पॉलिटिकल लीडरशिप काफी बार चेंज होती रही। 1963 में बाथ पार्टी ने पावर में आई, जो अब तक सीरिया में मेन रूलिंग पार्टी ही रही है। बाथ पार्टी की आइडियोलॉजी अरब सोशलिज्म, पैन अरबिज्म और सेक्युलरिज्म पर आधारित थी। सीरिया के पॉलिटिक्स में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता है जब जनरल हाफिज अल असद ने 1970 में करेक्टिव मूवमेंट के तहत पावर को अपने हाथ में ले लिया। असद ने सीरिया को एक अथॉरिटेरियन स्टेट बनाने में कोई ज्यादा देरी नहीं लगाई, जहां पॉलिटिकल ऑपोजिशन को क्रश किया गया और मिलिट्री के रूल को सेंट्रलाइज कर दिया। हाफिज अल असद ने सीरिया को एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज स्टेट बना दिया, लेकिन उसी के साथ साथ ह्यूमन राइट वायलेशंस और पॉलिटिकल रिप्रेशन भी ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ गया। 1982 में हाफिज अल असद को हामा मैसेकर के लिए ब्लेम किया जाता है, जिसमें सरकार ने अपने ही रेजिडेंट्स के भरे हुए शहर को लिटरली दफना दिया, सिर्फ विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए 20,000 से ज्यादा लोगों का मैसेकर कर दिया गया। असद फैमिली ने जब पावर में अपनी जगह बनाई, उसके बाद से ही सीरिया में एक लंबी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आई, इस पर डिबेट नहीं है, लेकिन उस स्टेबिलिटी का जो खामियाजा था, जो प्राइस पे करना था, वो काफी ज्यादा था। हाफिज अल असद के डेथ के बाद, उनके निधन के बाद 2000 में उनके बेटे बशर अल असद ने सीरिया की प्रेसिडेंसी संभाली। बशर जो एक डॉक्टर थे, उनसे यह उम्मीद लगाई गई कि नहीं, ये एक मॉडर्न, एक रिफॉर्मिस्ट लीडर बनेंगे, लेकिन बशर तो ऑपोजिशन को साइलेंस करने में अपने बाप से भी आगे निकले। 2011 में जब अरब स्प्रिंग के दौरान बहुत सारे कंट्रीज में प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो सीरिया में भी पब्लिक एंगर तेज होने लगी। लोग चाहते थे कि एक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म उन्हें मिले, करप्शन खत्म की जाए और पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों को मिले। कोई बड़ी बात तो है नहीं ये मांगना। ये प्रोटेस्ट इनिशियली पीसफुल भी थे, मगर जब प्रेसिडेंट बशर अल असद ने इन पीसफुल प्रोटेस्ट को ब्रूटल फोर्स से क्रश करना शुरू किया, तो यह प्रोटेस्ट वायलेंट ऑपोजिशन में बदल गए। गवर्नमेंट फोर्सेस ने एक्टिविस्ट और सिविलियंस को टारगेट किया, जिनमें सैकड़ों निहत्थे प्रोटेस्टर्स भी मारे गए। यहां से कहानी शुरू होती है एक लंबे सिविल वॉर की। 2012 में यह प्रोटेस्ट एक सिविल वॉर में ऑलरेडी बदल रहे थे। इनिशियल रेबल ग्रुप्स जिन्होंने हथियार उठाए, उन्हें कहा गया फ्री सीरियन आर्मी या FSA, इस नाम से उन्हें जाना गया। यह एक ग्रुप था जो इनिशियली डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स चाहता था, बशर अल असद के रजीम को हटाना चाहता था। यह एक सीरिया आर्मी के डिफेक्टर्स का ग्रुप भी मान सकते हो, जिसमें जो लीडर्स थे वो प्रोग्रेसिव थे, सेक्युलर थे, डेमोक्रेटिक सीरिया चाहते थे, असद की डिक्टेटरशिप को खत्म करना चाहते थे। तो मामला काफी सिंपल है। लेकिन जैसे जैसे वॉर लंबी होती गई, इनके अंदर अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग आइडियोलॉजीज और स्ट्रांग होती गई, जिनमें एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स भी थे जिनका इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ने लगा। इनमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट नाम आइसिस या इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया।
इन्होंने 2014 के आसपास सीरिया के कई शहरों पर अपना कंट्रोल जमा लिया। आपको याद होगा वो दौर जब दिन रात टीवी पर आईसिस के काले झंडे दिखते थे, एसयूवी पर बंदूकें लहराते हुए टेररिस्ट और उनके जो एग्जीक्यूशन थे उनके तस्वीरें, दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आती थी। आईसिस का मेन गोल था एक प्योर इस्लामिक कैलिफेट बनाना और इसके लिए उन्होंने खुद को अलग करके सीरिया में जो पॉलिटिकल कियोस चल रहा था उसका फायदा उठाया। आईसिस के कंट्रोल में सीरिया का एक बड़ा हिस्सा था और उसके ब्रूटल टैक्टिक्स पूरी दुनिया को चौंका दे रही थी ऑन अ डेली बेसिस। इसके अलावा एक और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, अल नुसरा फ्रंट, जो उसामा बिन लादेन के अल कायदा सीरिया चैप्टर से बना था। यह ग्रुप एक जिहादी एजेंडा के साथ सीरिया में एक्टिव हुआ था और उन्होंने असद के रजीम के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। अल नुसरा फ्रंट का ऑब्जेक्टिव भी एक रेडिकल इस्लामिक स्टेट एस्टैब्लिश करना था जिसमें डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की कोई जगह नहीं होती। आने वाले सालों में आईसिस के टेररिज्म को काउंटर करने के लिए कुछ मिलिशियाज भी बनाए गए, जिनमें से एक था सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ, जिसे बाद में यूएस फोर्सेस ने भी सपोर्ट किया। इस सिविल वॉर से 1 करोड़ से भी ज्यादा सिविलियंस को डिस्प्लेस होना पड़ा। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं इस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट में। ये वो टाइम था जब असद ने अपनी आर्मी के थ्रू अपोनेंट्स को टारगेट किया, लेकिन जब ये सिविल वॉर कुछ ज्यादा ही इंटेंस होने लगा, जब प्रॉब्लम ज्यादा ही बढ़ने लगी, तो असद ने एक और मेथड अडॉप्ट किया और वो था केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल। 2013 में डेमास्कस के आउटस्कर्ट्स में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। ग्लोबल शॉकवेव्स बनी इस वजह से। यूएस ने असद पर केमिकल वेपन्स यूज करने का इल्जाम लगाया। इन अटैक्स में सैरिन गैस का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से सैकड़ों निर्दोष सिविलियंस की मौतें हुई। तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने मामले को सीरियसली लेते हुए फोर्सेस को डायरेक्ट किया फॉर मिलिट्री इंटरवेंशन। दुनिया भर में सीरिया पर सैंक्शंस, आइसोलेशन और कॉन्डमनेशन के अटेम्प्ट्स किए गए। यूएस और यूरोपियन नेशंस ने सीक्रेटली असद को टॉपल करने के लिए रेबल्स के एक फैक्शन को भी सपोर्ट किया, जिसे आज एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस कहते हैं। यह देखते हुए रशिया और ईरान, जो कि असद के एलाइज थे, उन्होंने रजीम को हेल्प करने के लिए अपनी मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट देना शुरू किया। यह समय था जब इस सिविल वॉर में एंट्री होती है ग्रेट पावर्स की। खेल सीरिया का, लेकिन चेसबोर्ड में जो गोटी है वो और कोई लोग मूव कर रहे हैं। रशिया की मिलिट्री सपोर्ट, स्पेशली एयर सपोर्ट की वजह से असद की रजीम को अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करने का मौका मिला। रशिया के एयर स्ट्राइक्स ने रेबल फोर्सेस को कमजोर कर दिया और असद के कंट्रोल को रिस्टोर करने में भारी मदद मिली। रशिया के एयर सपोर्ट बैटलफील्ड में जितना क्रूशल था, उतना ही क्रूशल था रशिया का सीरिया को ग्लोबल फोरम्स में दिया गया डिप्लोमेटिक बैकिंग। रशिया ने यूएस सिक्योरिटी काउंसिल में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके असद को इंटरनेशनल सैंक्शन से बचने का मौका दिया। जब रशिया ने 2015 में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को परमानेंट बनाया, तो उसका फोकस ना सिर्फ असद को सपोर्ट करना था, बल्कि यूएस और यूरोप के ऊपर प्रेशर डालना भी था। सीरिया में रशियन इंटरवेंशन एक न्यू जियोपॉलिटिकल ऑर्डर एस्टैब्लिश करने की मंशा से हमें देखना चाहिए। इसके बाद असद की रजीम को वहां बूस्ट मिला, तो उन्होंने 2017 और 16 में सीरिया के जो दूसरे मेजर सिटीज थे, एलेपो, होम्स, को दोबारा उन्होंने कैप्चर कर लिया। यह वॉर का एक टर्निंग पॉइंट बना, जहां असद का कंट्रोल पूरे कंट्री पर वापस रिकवर होना शुरू हो गया था और रशिया के डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट की वजह से उनका रजीम सिर्फ सर्वाइव ही नहीं कर पाया, बल्कि अपना पावर बेस रिस्टोर कर पाया। लेकिन असद के सुख के दिन भी खत्म होने वाले थे। 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू हो गया और रशिया अपने मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज डाइवर्ट करने लगा। रशिया की एयर स्ट्राइक और आर्टिलरी सपोर्ट, जो पहले रेगुलरली असद के लिए काफी क्रूशल हुआ करती थी, अब ये धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी, मदद की फ्रीक्वेंसी और सप्लाईज कम होती गई। रशिया के साथ साथ ईरान असद को क्लोजली सपोर्ट कर रहा था। ईरान ने असद के रजीम को बचाने के लिए मिलिट्री एड, वेपन्स, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। ईरान ने अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को भी सीरिया में फाइट करने के लिए भेजा। हिजबुल्लाह ने ईरान के ऑर्डर्स पर सीरिया के साउथ और वेस्टर्न रीजन्स में एक्टिव होकर असद के फोर्सेस को सपोर्ट किया। यह सपोर्ट मेनली ग्राउंड फोर्सेस के फॉर्म में था, जिसे ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सोल्जर भी इसमें शामिल थे।
ईरान के लिए इंटरवेंशन काफी क्रूशल था क्योंकि उनकी प्रेजेंस से असद के फोर्सेस को मैन पावर प्रोवाइड हो रहा था जो कि वॉर में बहुत काम पड़ रहा था। हिजबुल्लाह और आईआरजीसी ने ना सिर्फ डेमास्कस की सेफ्टी इंश्योर की बल्कि एलेप्पो में भी फाइटिंग की और प्रो असद फोर्सेस के लिए वॉर को फेवरेबली टिल्ट किया। ईरान का एम था कि अपनी शिया इन्फ्लुएंस को सीरिया के अंदर भी एस्टैब्लिश किया जाए जो कि लेबनान और इराक में भी पहले से था। ईरान ने सीरिया को अपनी रीजनल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखा था, अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को लॉन्ग टर्म बनाया था। अब आते हैं द ग्रेट गेम के दूसरी तरफ। यूएसए अपना वहां गेम खेल रही थी। 2011 में सीरियन प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। यूएस ने इनिशियली असद के रिजीम के खिलाफ स्टैंड लिया। बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन ने सीरियन ऑपोजिशन को पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देना शुरू कर दिया ताकि असद के रिजीम को टॉपल किया जाए। यह सपोर्ट सबसे पहले नॉन लीथल एड के फॉर्म में दिया गया जिसमें कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और मेडिकल सप्लाई शामिल थे। फिर रॉयटर्स ने 2013 में रिपोर्ट किया कि सीरिया में नॉन लीथल एड तो भेजना हो ही रहा है लेकिन साथ साथ लीथल एड भी जैसे एंटी टैंक मिसाइल और स्मॉल आर्म्स भी सेंड करने की प्लानिंग की गई थी। इसका मतलब और इसका मेन गोल था असद को अपनी पावर से हटाना, रेबल ग्रुप्स को स्ट्रांग बनाना ताकि वो रेजीम चेंज कर सके। ओबामा ने यह स्ट्रेटजी इसलिए अपनाई थी क्योंकि उनका मानना था कि असद का रेजीम इतना ब्रूटल है कि उनको रिमूव करना जरूरी है। यह भी कहा गया कि असद के डाउनफॉल से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आ सकते हैं उस रीजन में। लेकिन यूएस सपोर्टेड रेबल्स में कई ग्रुप्स ऐसे भी थे जैसे अल नुसरा फ्रंट जो धीरे धीरे एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले गए। यानी यूएस सपोर्ट उन एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को इनडायरेक्टली स्ट्रेंथन कर रहा था जिन्होंने बाद में जाकर आईसिस के राइज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, योगदान दिया। इसे कहते हैं जियोपॉलिटिकल फकीरी, या हिंदी में कहे तो अपने पैर पर ही यूएसए ने कई बार कुल्हाड़ी मारी है। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप 2017 में प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अपनी सीरिया पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट किया। ट्रंप ने सीआईए के कोवर्ट ऑपरेशन टू ट्रेन रेबल्स इन सीरिया को शट डाउन कर दिया। ट्रंप का यह डिसीजन सीरिया में यूएस की इन्वॉल्वमेंट को कम करने में उस रीजन में अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस को रिस्ट्रिक्ट करने की इंटेंशन से लिया गया था। ट्रंप का डिसीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने ओपनली कहा था कि सीरिया के सिविल वॉर में यूएस का इंटरेस्ट लिमिटेड होना चाहिए, हमें अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हाल ही में फिर से ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब यूएसए को सीरिया के दलदल में नहीं घुसना चाहिए, सीरिया को अपने मामले को खुद ही सुलझाना चाहिए। सीरिया में आखिरी बड़ा प्लेयर है तुर्की जो ऑपोजिशन को सपोर्ट कर रहा था। तुर्की ने 2016 में कर्डिश ग्रुप्स को टारगेट करते हुए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये ग्रुप्स टर्किश सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट है। तुर्की का इंटरवेंशन डायरेक्ट था। उन्होंने सीरिया के नॉर्दर्न बॉर्डर एरियाज में अपनी आर्म्ड फोर्सेस भेजी जहां पे कर्डिश मिलिटेंट्स एक्टिव थे। ये कर्डिश मिलिटेंट्स तुर्की के लिए सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा रहे हैं। तुर्की के ऑपरेशन यूफ्रेटिस शील्ड और ऑपरेशन ऑलिव ब्रांच जैसे मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किए जिसमें उन्होंने सीरिया के नॉर्दर्न रीजन्स में कर्डिश स्ट्रॉन्गहोल्ड्स को टारगेट किया। ये ऑपरेशंस ना सिर्फ तुर्की के सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस कर रहे थे बल्कि उन्हें कर्डिश ग्रुप्स को भी पीछे ढकेल का काम कर रहे थे जो कि बाय द वे यूएस बैक्ड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का हिस्सा थे। तो आप देखिए कहां कहां तार कहां कहां जुड़े हुए हैं इस ग्लोबल चेस गेम में। अब इतने कॉम्प्लिकेटेड बैटलफील्ड में एक प्लेयर जो पिछले 8 सालों में कंसिस्टेंटली ग्राउंड गेन कर रहा था अचानक एक हफ्ते में धराशाही कैसे हो गया? यह सडन कोलैप्स हो कैसे गया? लोकल मिलिट्री फेलियर था या इसके पीछे एक बहुत बड़ा फिर से जियोपॉलिटिकल गेम चला? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ऐसे स्विफ्ट और इफेक्टिव ऑफेंसिव के लिए फॉरेन बैकिंग जरूरी है। यह बात आप समझ लीजिए। यह एक ऑर्डिनरी ऑपोजिशन ग्रुप का अटैक नहीं था, यह एक वेल कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री कैंपेन था जो लोकल ऑपोजिशन फोर्सेस के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपोजिशन ग्रुप्स को मॉडर्न वेपन्स और लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट मिल गया था जो पहले उनके पास नहीं था। शक कि सुई इजराइल और तुर्की की तरफ जाती है लेकिन अभी ऑफिशियली कुछ कहा नहीं जा सकता। इजराइल ने पहले भी असद के रजीम के खिलाफ अपनी मिलिट्री ऑपरेशंस की हुई हैं, लेकिन बीते हफ्तों में आईडीएफ ने अपनी प्रेजेंस सीरिया के नॉर्दर्न रीजन्स में ज्यादा इंक्रीज की है। यह स्पेकुलेशन है लेकिन कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि इजराइल के मिलिट्री एयर स्ट्राइक्स जो हिजबुल्लाह को टारगेट कर रही थी उन्होंने असद की पोजीशन को कमजोर किया और ऑपोजिशन को उनका फायदा उठाने का एक बहुत बड़ा मौका दिया।
अब बात करते हैं रशिया की रोल की। जब असद की रेजीम के कोलैप्स की न्यूज आई तो रशिया की पोजीशन भी क्वेश्चनेबल बन गई। अब 2015 में तो रशिया ने असद को फुल सपोर्ट दिया था, लेकिन अब जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो चुका है तो रशिया का फोकस पूरी तरीके से बदल चुका है। रशिया ने सीरिया में अपनी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट को सिग्निफिकेंटली कम कर दिया और ऑपोजिशन फोर्सेस ने उसका फायदा उठाया। क्या रशिया ने अपने फोर्सेस को डिलिबरेटली विड्रॉ किया था? कोई प्लानिंग थी या फिर एक स्ट्रेटेजिक मूव था जिसके बाद भाई इंटरनल इश्यूज थे रशिया के अपने आप? लेकिन यह भी स्पेकुलेशन है कि रशिया विड्रॉल से ऑपोजिशन को एक भारी मोमेंटम मिला, असद को वनरेबल बना दिया रशिया के इस विड्रॉल ने। और एक हिडन प्लेयर है जिसकी बात बहुत कम हो रही है और वो है चाइना। बीते सालों में चाइना ने सीरिया के रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भारी इकोनॉमिक प्रेजेंस दिखाई है। यह भी स्पेकुलेशन है कि चाइना ने इनडायरेक्टली ऑपोजिशन को सपोर्ट किया अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए। इस पूरे मामले को समझने के बाद लेकिन एक चीज तो क्लियर है, असद की रजीम इतने साल टिकी और फिर इतनी जल्दी उसका खात्मा हुआ इंटरनल मिलिट्री फेलियर की वजह से नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल गेम के नतीजे की वजह से। यह एक प्रोसेस था जिसमें ग्लोबल पावर्स ने अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए अपने इंफ्लुएंस को बैलेंस करते हुए एक रोल अदा की। जब असद की रजीम अपने कोलैप्स की तरफ गई तो दुनिया के सारे जो मेजर प्लेयर्स हैं अपने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने अपने उन्होंने दांव पेच खेले। सीरिया में अब जो हो रहा है, हमने इसका एक वर्जन 2021 में देखा था। अफगानिस्तान में वो था तालिबान का टेक ओवर। दोनों सिचुएशन में ही एक एस्टैब्लिश्ड रिजीम का कोलैप्स होता है। 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल को विदाउट मच रेजिस्टेंस कैप्चर कर लिया और असद के रजीम में भी कुछ इस तरीके से ही अनएक्सपेक्टेडली रजीम ध्वस्त हो जाता है। दोनों ही केसेस में फॉरेन सपोर्ट और एक्सटर्नल प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट क्रूशल था। अफगानिस्तान में यूएस और नेटो फोर्सेस के विड्रॉल की वजह से तालिबान को अपना मूवमेंट जो था वो एक्सेलरेट वो कर देती है। यूएस के सडन विड्रॉल के बाद तालिबान स्विफ्टली अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करती है, कुछ ही हफ्तों में काबुल को कैप्चर कर लेती है। यही सिनेरियो सीरिया में भी अब हमें दिखने को मिलता है। असद के रजीम को सपोर्ट देने वाली पावर्स जैसे ही रशिया, ईरान और हिजबुल्लाह थोड़ी कमजोर हो जाती हैं, सालों से जो असद को सपोर्ट कर रही हैं वो पीछे हट जाते हैं। सडनली ऑफेंसिव शुरू होता है और असद का पलायन हो जाता है। अफगानिस्तान में भी तालिबान का टेकओवर एक क्लियर शिफ्ट लाता है। ह्यूमन राइट अब्यूजर्स होते हैं, स्पेशली अगेंस्ट वुमेन। इंटरनेशनल रिकग्निशन का भी इशू सबसे प्रॉब्लमैटिक होता है। सीरिया में भी जब असद की रजीम गिर जाती है तब वहां अब जो इस्लामिस्ट हार्डलाइनर्स द्वारा ह्यूमन राइट वायलेशंस का जो खतरा है, स्पेशली वुमेन राइट्स पर, अफगानिस्तान की तरह यहां भी क्या सीरिया में इंटरनल डिस्प्लेसमेंट और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ेगा? यह आने वाले दिनों में साफ पता चलने वाला है। There is absolutely no basis under international law to preventively or preemptively disarm a country you don't like. I mean, if that were the case, it would be a recipe for global chaos, because lots of countries have adversaries they would like to see without weapons. This is completely lawless. That there is absolutely no basis in international law to do it. But it's a continuation of what Israel has been doing in Syria for at least a decade. So many hundreds of preventive attacks have been launched by Israeli forces in Syria to destroy Hezbollah weapons dumps, storage facilities, in circumstances where there is no armed attack from Hezbollah on Israel from Syria. And that would be the only circumstance in which you could use self-defense against Hezbollah in Syria. So it's different from the situation in Lebanon, because there is a hot conflict there. But you can't just follow your enemy wherever they are in the world and bomb them in some third country, which has been Israel's approach. It's also done it of course, in other ways, and we've commented on this previously, through campaigns of assassinations of adversaries in third countries, including in quite a few number of cases of civilians. I mean, think of the multiple assassinations of Iranian nuclear scientists over the last 10-15 years. For example, the war in Syria. And you may actually hear from grown-up reporters who are lying through their teeth or ignorant beyond imagining that, oh, the war in Syria, yes, Russia intervened in Syria. Well, do you know that that Obama tasked the CIA to overthrow the Syrian government, starting 4 years before Russia intervened? What kind of nonsense is that? And how many times did
the New York Times report on Operation Timber Sycamore, which was the presidential order to the CIA to overthrow Bashar al-Assad. 3 times in 10 years. This is not democracy. This is a game. And it's a game of narrative. Why did the U.S. invade Iraq in 2003? Well, first of all, it was completely phony pretenses. It wasn't, oh, we were so wrong, they didn't have weapons of mass destruction. They actually did focus groups in the fall of 2002 to find out what would sell that war to the American people. Abe Schultzke, if you want to know the name of the PR genius. They did focus groups on the war. They wanted the war all the time. They had to figure out how to sell the war to the American people, how to scare the shit out of the American people. It was a phony war. Where did that war come from? You know what? It's quite surprising. That war came from Netanyahu, actually. You know that? It's weird. And the way it is that Netanyahu had, from 1995 onward, the theory that the only way we're going to get rid of Hamas and Hezbollah is by toppling the governments that support them. That's Iraq, Syria, and Iran. And the guy's nothing if not obsessive. And he's still trying to get us to fight Iran this day, this week. He's a deep, dark son of a bitch, sorry to tell you. Because he's gotten us into endless wars, and because of the power of all of this in the U.S. politics, he's gotten his way. But that war was totally phony. So what is this democracy versus dictatorship? Come on, these are not even sensible terms. है सीरिया की राजधानी डेमास्कस को रेबेल्स और टेरर ग्रुप्स कैप्चर कर लेते हैं और कई देशों और यूनाइटेड नेशंस की टेरर लिस्ट में शामिल हयात तहरीर अल शाम यानी HTS डेमास्कस पर अब अपना परचम फहरा देती है। HTS के जो सरदार हैं अबू मोहम्मद अल जोलानी, इनके हाथों में सीरिया जैसी मिडिल ईस्ट की एक पावर, उसकी कमान अब आ जाती है। क्या होगा सीरिया का? में सीजफायर स्टार्ट होने के कुछ ही घंटों बाद सीरिया में रेबेल्स के इस नए ऑफेंसिव की खबरें आने लगती है। नवंबर एंड में एलेप्पो का कब्जा और फिर सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर आतंकी फौज पहुंच जाती है डेमास्कस, सीधा बशर अल असद के पैलेस के अंदर। बट अब तक डिक्टेटर साहब तो अपने परिवार के साथ रशिया पलायन कर चुके होते हैं। सबसे पहले असद के रेजीम गिरने से मिडिल ईस्ट में एक नया पॉलिटिकल वैक्यूम बन जाता है। यहां पर यह समझना जरूरी है कि यह वैक्यूम किसके लिए वैक्यूम है और किसके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। यह वैक्यूम असद को सपोर्ट देने वाली रशिया के लिए एक बड़ा सेटबैक है। पुतिन ने सीरिया को अपना एक स्ट्रॉन्ग एलाय बनाकर रखा था, लेकिन इस सडन फॉल से पुतिन को अपनी स्ट्रैटेजी को अब रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। 2015 में रशियन एयर स्ट्राइक्स ने असद को अपनी जगह बनाने के लिए और जगह बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा मदद की थी। रशियन इंटरवेंशन ने असद की रेजीम को एक्चुअली रिवाइव किया था, लेकिन अब जब रेजीम गिर रही है तो रशिया को एक नई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। उधर यूएसए के लिए भी यह एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। यूएसए ने असद को टॉपल करने के लिए एफर्ट्स तो जरूर किए थे, तो देखा जाए तो यूएस के लिए तो यह एक स्ट्रेटेजिक जीत हुई, लेकिन यह सडन कोलैप्स उनके लिए भी एक सरप्राइज है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि असद की सत्ता से बाहर होना एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है फॉर सीरिया टू परस्यू पीस। इसमें आयरोनी की यह बात है कि असद को हटाने वाली जो HTS ग्रुप है वो एक्चुअली अल-कायदा से निकली हुई है, और अल-कायदा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है भाई? अमेरिका है। 9/11 अटैक्स कोई भूल सकता है, लेकिन बाइडेन को फिर भी लगता है कि अल-कायदा से निकला ग्रुप, जिसको यूएस ऑफिशियली टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानती है, वो पीस की तरफ जा सकती है। बाइडेन में भी एक फकीरी है। खैर, बाइडेन को जाने देते हैं, ऐसे में भी वो अपने आखिरी कुछ दिन बचे खुचे गिन रहा है व्हाइट हाउस में। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि फ्यूचर हैं अमेरिका के अगले 4 सालों के लिए, उनका मानना है कि सीरिया में जो भी बवाल हो रहा है उससे अमेरिका को बिल्कुल दूर रहना चाहिए। मतलब 100 चूहे खाकर अब बिल्ली चली हज को। किसी भी देश में आग लगाकर वहां से चुपचाप कट लेना, ये पुरानी आदत है। पहले वियतनाम, फिर इराक, फिर अफगानिस्तान, अब सीरिया। लेकिन सीरिया को लेकर जियोपॉलिटिकल चेस में ईरान का बहुत डिटेल में बात करना जरूरी है। यह इसलिए क्योंकि यह उनके लिए एक मेजर लॉस है।
ईरान ने असद को मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। उनके रेजिम को सपोर्ट देने के लिए ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड या IRG काफी एक्टिव रही है। 2018 में ईरान ने असद के रेजिम को सपोर्ट करते हुए अपने फोर्सेस को सीरिया में डिप्लॉय किया था। अब जब असद की रेजिम गिर रही है तो ईरान को भी अपनी मिडिल ईस्ट स्ट्रैटेजी को फिर से रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो अब फाइनल सवाल यह उठता है कि आगे क्या? जब असद का बर्बरता भरा रेजिम को टॉपल किया गया तो रेबल ग्रुप्स क्या असली प्लान क्या है? क्या वो भी अब अपना असली रंग दिखाएंगे? HTS के लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने CNN से बात करते दौरान तो अपने एम्बिशंस को बिल्कुल साफ तरीके से सामने रखा। अल जुलानी का कहना है कि HTS का एम है कि ऐसे गवर्नमेंट को बनाना जिसमें इंस्टीट्यूशंस हो, एक काउंसिल हो जो लोगों द्वारा चुना जाए। अल जुलानी का कहना है कि सीरिया को ऐसे एक गवर्नमेंट सिस्टम की जरूरत है जो इंस्टीट्यूशनल हो, जहां रूलर है वो अपनी मर्जी से डिसीजन ना ले पाए। यह बात उन्होंने 2018 में भी कही थी जब HTS ने अपने आप को अलकायदा से कट ऑफ कर लिया था। लेकिन एक रियल चैलेंज है, HTS का इमेज जो है वो अभी भी एक टेरर ग्रुप के रूप में ही है। USA, तुर्की, UN सब HTS को एक टेरर ग्रुप के तरह ही देखते हैं और इसी वजह से उनका ग्लोबल रिकग्निशन, लेजिटिमेसी एस्टैब्लिश करने में मुश्किल होगी। HTS के एग्जिस्टिंग कंट्रोल वाले एरियाज में भी उन्होंने एक क्वासाई स्टेट मॉडल बनाया है। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स हैं, टैक्सेशन और हेल्थ केयर सिस्टम शामिल हैं। अल जुलानी का यह कहना है कि उनका फोकस है कि सेक्टेरियन या एथनिक डिविजन्स बढ़ाने का नहीं है बल्कि एक इस्लामिक गवर्नमेंट बनाने का है। जुलानी ने यह भी एडवाइस दिया है कि जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बचे हैं देश में, जैसे हॉस्पिटल्स और पुलिस स्टेशन, उन्हें डैमेज ना किया जाए। लेकिन कथनी और करनी में बहुत फासला होता है। इसी बात पर कोई गारंटी नहीं है कि सीरिया भी अफगानिस्तान की तरह एक एब्सोल्यूट फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट स्टेट नहीं बन जाएगा। अभी सीरिया का फ्यूचर काफी अनसर्टेन है। असद का रेजिम कोलैप्स होने के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ गया है। अभी आने वाले दिनों में जुलानी अपने आप को एक थियोक्रेटिक लीडर घोषित करेंगे या नहीं, यह देखने वाली बात है। इंस्टेबिलिटी के दरवाजे अभी खुले नहीं हैं और भी खुलेंगे, यह देखना है। वहीं सीरियन प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद गाजी अल जलानी ने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात कही है। लेकिन अगर जुलानी और उनके HTS पावर में आते हैं तो उन्हें इलेक्शंस का आइडिया शायद उतना पसंद ना आए। लेकिन अगर कर्डिश लेड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस या HDF अगर आते हैं पावर में या उनका दबदबा बनता है तो फिर ऐसा हो सकता है कि वेस्टर्न पावर्स को एक ऑपरेशन के रूप पर, वहां एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के रूप पर, वहां फ्यूचर आउटकम को इन्फ्लुएंस करने के रूप पर एक फोर्स उन्हें मिले। इसका मतलब यह है कि सीरिया में अभी भी पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, मॉरल फ्लक्स चलता रहेगा। और occurred in 2 weeks. This has been going on for almost 70 to 80 years, long history. And who did it, who put the hands in fire is the ambitious, one of the filthiest, the dirtiest, the war criminal Netanyahu. People will spit on his face and will forget Adolf Hitler when they will think about the atrocities and the way he has shut off the oxygen, food, electricity, destroyed every habitat in north, center and south of Gaza and Rafah, and closed the Philadelphia corridor so that the food could not, so poisoned the wells, put cement in them, destroyed all the hospitals, the universities, the colleges, the schools. There is no example of such brutality and cruelty in the whole world. Ever since the word came into existence, now you can see why the people spit on the face of the Jews, why they don't accept them as a normal human being. See what these young Jews are saying, that his wife wants to settle in Gaza, and if the kids are dying, they're starving, he would not give them any food, would let them die of starvation. Such a cruel people you want to live amongst you. So it's about time you come across a Jew, and Zionist Jew, not a practicing Jew who, follows Prophet Moses or Torah. And they are, you will know, compassionate. They are anti-war, they are anti-killing, they are anti-occupation, colonization, and all those barbarism and cruelty. They don't want to be a part of it. With these few words, I will tell this jubilations of Syrian occupation must stop if the world has to live in peace.
यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर